So let me tell you a beautiful one. اچھا آج ایسے بہت امپورٹنٹ سیشن ہے کہ ٹرو سینس میں آج ہم ایسی چیز پر بات کریں گے جو کہ کمپیوٹر سائنس کی شرط ہے. Here is the problem. Problem is the problem. آپ کے پاس ایک میز ہے, آپ کے پاس ایک میز ہے اور امیجن کریں کہ آپ کے پاس ایک روبوٹ ہے اور روبوٹ کسی ایکس لوکیشن پہ کھڑا ہو, ایکس سے جے پہ کھڑا ہو, ٹھیک ہے. آپ نے کرنا کیا کہ پرابلم از دا فالوئنگ کہ میں اگر آپ کو دو لوکیشنز دوں گی, لیٹ سے جے اور لیٹ سے جی, آپ نے بتانا کہ کیا جے سے میں جی پر پہنچ سکتا ہوں, کین یو ریچ فرام جے ٹو جی. Everybody understand? Actually, I will give you two locations, and you have to tell me whether I can reach from this location to this location. Okay? And keep this thing in mind. Okay, you cannot cross through lines. These lines are the barriers, and you cannot cross the barrier. Okay? Everybody understand? So, اگر میں آپ کو کہوں کہ let's say کہ جی ایک روبوٹ ڈیزائن کرنے میں یہ کام کرے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈیزائن کریں. Imagine a robot which does this. ٹھیک ہے, اور اسے ایک سورس, ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ دیا جاتا ہے اور ایک فنش لائن دیا جاتا ہے, اور کہتا ہے بھائی یہاں تک پہنچو, آئی ڈونٹ کیئر کہ کیسے پہنچو. سوال یہ کیسے کریں گے, باقی ہے اس کو کراس کر سکتے ہیں نہیں, وہ جہاں تک اوپن نوڈ نہیں ہے تو یہاں سے ایسے جانا ہوگا. یہ ایک سینیریو, اٹ کین بی ہائپوتھیٹیکلی, اٹ کوڈ بی ویری ویری کمپلیکس. یہ بات سنیں, that's a very very real reality based problem. کہ جو مارس پہ جو کیوریوسٹی بھیجا ہوا ہے, he's searching for some water. ٹھیک ہے, so what is that destination we don't know. We want to go there, but where we don't know. We want to search for that. یہ بات سنائیں, so how to reach there, that's the question. یہ بات سنائیں, it's a very very reality based problem. ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے ایک روبوٹ کو ایک, اور اسے کچھ بھی نہیں پتا, اسے پاس اور ابھی وہ وہاں پہنچا ہے, کیوریوسٹی ابھی تک پہنچا ہے جا کے, اسے کوئی سیٹلائٹ امیج وغیرہ بھی اس وقت نہیں ہے, تو پہنچا ہے, اس کے پاس سینسرز ہیں, وہ ریکارڈ دیکھتا ہے اور اس کی ڈیسیژن لیتا ہے کہ ہاں میں نے ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے. سوال یہ کہ یہ کیسے سالو کریں, پہلے اسے سالو کرتے ہیں, پھر ہم جنرل معافی کرتے ہیں. سر وہ اپنے رائٹ لیفٹ ٹاپ باٹم کی طرف چیک کر رہا ہے کہ اوپن ہے کہ نہیں ہے, پہلے تو نہیں آ گئی. Is this correct? Is this correct? پہلے تو ویریئنٹ چیک کرے گا. پہلے وہی تم کہہ رہے ہو کہ وہ سامنے دیکھے, پیچھے دیکھے, رائٹ دیکھے, لیفٹ دیکھے, اور کچھ اچھا مسئلہ مل جائے تو ڈائگنل نہیں چیک کر رہا ہے. ڈائگنل نہیں ہو جو دیکھ سکتا ہے, نہیں سر, ڈائگنل نہ ہو, کیونکہ there are infinite possible directions. زیرو سی اینگل کی طرف زیرو 360 کیا ہے اگر نام دیکھ لیں, کہیں بھی وہ جا سکتا ہے, کہیں بھی جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ 0.5 اینگل ہو تو پھر 45.5 پہ جاتا تو وہ صحیح رہتا. پھر there are infinitely possible angles. کیونکہ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے اینگل پر ادھر ادھر کر دیا تو یہ جب میسو اسکیل پہ جائے گا تو دنیا آسمان میں چلا جائے گا, because it matters a lot. چلیں جی, لیٹس سے کہ ڈائریکشن جو ہے وہ ڈسکریٹ ہے, ٹھیک ہے, پہلے ہم تھوڑا اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہاں نہیں کیا کریں, ادھر چل پڑیں, اسٹارٹ تو لے لیں گے, اس ڈائریکشن چل پڑتے ہیں, آگے جا کے پتہ لگتا ہے نا یہ ادھر سے رستہ بلاک ہو گیا, واپس آ جائے. نہیں سر, نہیں واپس آتے ہیں, واپس کہاں تک واپس آئے, جہاں اسٹارٹ ہو گئی, یعنی کہ جہاں سے یہ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ سر جہاں پہ ڈیسیژن غلط ہوتا ہے, جہاں پہ ڈیسیژن غلط ہوتا ہے وہ تو آخری پوائنٹ پر غلط ہوتا ہے. وہاں پہ اس کے ساتھ چوائس کریں گے, واپس آئیں گے جہاں پہ اس کے پاس چوائس ہے, لاسٹ رائٹ چوائس. اچھا لیکن ایک اور بات, وہ یہ کہ وہ یہاں سے واپس آیا, ٹھیک ہے, واپس آ کے وہ دوبارہ کدھر جائے گا, کیا وہ ایسے یہاں سے جا رہا ہے, وہ واپس وہ جا رہا ہے, اور وہ وہاں سے پلٹا ہے, آپ کے پاس چوائسز کون سی, چوائسز یہاں سے وہ واپس پیچھے بھی جا سکتا ہے. سر اب ہر واپس پیچھے جا سکتا ہے, وہ آگے پیچھے جا رہا ہے,
यहाँ पर आया तो ओ ये रास्ता दोबारा ब्लॉक, अब वो वापस जैसा चल रहा है, फिर वापस इधर आता है, सब उधर टू एंड फ्रो करता है। जिस बात को वो एक दफा देख ले दोबारा जाने की जरूरत नहीं। जी बात क्या? जिस बात पे वो एक दफा चले गए दोबारा जाने की जरूरत नहीं। जिस पाथ पे वो एक दफा चला जाए उस पाथ पे उसे दोबारा जाने की जरूरत नहीं। वेरी नाइस, ठीक है। चलें जी, अब ये बात कर लेते हैं, ये जो उसने बात की, तुम्हारा नाम क्या है? उस्मान ने बात की, उस्मान ने बात की, कहता भाई जहाँ जहाँ से जिस जिस जगह से वो जा रहा है ना, उस जगह का ना एक वो मार्कर लगाता है कि भाई वो यहाँ से गुजर गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वो अब वो मार्कर तो एक फिट वो छोटा सा डॉट ही है ना, पेन की लकीर हो गई होगी। अब जी लेट्स से मैं मार्क्स पर बैठा था, अब मुझे लकीर लगा रहा है, वो पहले लकीर लगाता ही फिर वापस आता है, उस लकीर की बिल्कुल थोड़ा सा अब दोबारा उसी लकीर अब उसके साथ थोड़ा दर्द आया था, फिर दोबारा लकीर वो पूरी जिंदगी में हमारे जो है वो वही इतना पैच ही होगा, है ना? ये बात है ना? We are in trouble. Actually उसे ये कह दिया जाए ना, तो इसमें भी इतनी पॉसिबल, इस तरह से इन्फिनिट डायरेक्शंस थी, इस तरह इन्फिनिट पॉसिबल डॉट्स हैं यहाँ पे, बच जाएगा। सर जब तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर और वहां पर मार्कर से मार्क करता जाओ, तो आप एक बड़ी ही गंभीर सिचुएशन में फंस जाओगे। Time and space both. You need infinite resource for this. You need infinitely many resources for this. And you don't have infinite resources. Okay? So everybody understand the problem so far. जी हाँ, पहला तो बड़ा मसला प्रॉब्लम ये था कि हम एक तरफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हम इन्फिनिट दफा एक ही जगह में चलते जाए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने क्या किया? हाँ? नहीं रास्ता बंद हुआ तो वापस इधर उधर वापस सेम दूसरे पे ना चलते जाए, उसके लिए हमने एक काम किया, हमने कहा जैसे मार्क करते जाए। हाँ जी, मार्क करते जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि मार्क जब हम करेंगे तो मसला ये है अगर मैं जिस पूरे पाथ को मार्क कर दूं तो भी बड़ा शदीद प्रॉब्लम वो, लेकिन मैं कितना मार्क करूं? देयर आर इन्फिनिटली पॉसिबल डॉट्स। हमारे पास इतनी सारी लोकेशन जैसे हैं, जे से ई, जे से आई, ये सारी अगर हम इस तरह एक बनाते जाए, पाथ बनाते जाएं कि जैसे ई का एक पाथ है, जैसे आई का एक पाथ है, और ये नोड्स एक किस्म की जिस हम सेव करते हैं उस तरह नोट सेव करते हैं, क्या बात कर रहे हो? मतलब पाथ सेविंग करना शुरू कर दें। अगर हम जे से जी पे जाना है ना हमने, तो हम जे से ई पे जो है उसका वो चेक कर लें, और जे से आई का चेक करें, और इससे आगे आगे मतलब जहाँ जहाँ पाथ मिलता है उसको देखते हैं। इस तरह से कि वो डिफरेंट हमारे जो है ना पास में डिफरेंट रखें, क्योंकि हम मिनिमम पार्ट्स को मार्क करें। अच्छा, अब वो हमें जो है एक डेफिनेट जो है ना हमें डिफरेंस दे जो सर एक चीज़ ये भी सकती है कि जब तक एक स्टेप लेना उसको डायरेक्शन दे कि किस तरफ उसको रास्ता मिल रहा है जाने के लिए, हर मूव पे मतलब अगर एक स्टेप लेकर आगे आता है तो चेक करें किस डायरेक्शन में रास्ता खुला है, फिर अगर उसको आगे मिलता है तो उससे एक स्टेप पीछे है। हमें सिर्फ दो पार्ट्स का रास्ता चेक करना चाहिए शुरू में। पहले देखिए कि एल से केसा का रास्ता है, दो पार्ट्स का रास्ता चेक करते हैं, और फिर देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लीड कर सकते हैं, तो हम उस पॉइंट से ट्रेवल करते हैं उस पॉइंट तक जाएं। और रास्ता चेक करने के लिए एक दफा जाना पड़ेगा। बुरहान ने क्या किया? बुरहान कैसे करते हैं, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ना हम मार्क करते हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और हम एक काम करते हैं, इमेजिन दैट देयर इज अ रोड, ये लेता हूँ इधर है, और वो कहता है कि वो इस पूरे रीजन को फॉर एग्जांपल यहाँ से जहाँ तक रीजन उस रीजन को वो एक डॉट नीचे और जहाँ पर वो फ्री है, सो वो उसका वो जो भी लेजर से देखता है और उसको उस पूरे पोर्शन में जो कि सेम जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो इस पूरे पोर्शन को वो कहता है कि ऐसे होगा डायरेक्शन, है ना? और फिर वो क्या करता है, इस पूरे को रिप्रेजेंट करता है बाय वन डॉट, है ना? एक्चुअली द आइडिया इज द फॉलोइंग कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं, पूरे के पूरे को मार्क करने के बजाय हम स्पेस में कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि ऐसे करते हैं ये हमारे पॉइंट्स हैं, और हम कहते हैं हम सारे रिकॉर्ड सेव नहीं करेंगे, बल्कि वो रीजन जो कि हमें लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हम जा सकते हैं
उस रीजन को काइंड ऑफ हम श्रिंक करके एक कंसीडर करते हैं. So look at this. What we're going to do is, this idea was actually first presented by author. In the 1860s के around. What he presented was कि ऐसा करते हैं कि वो हम कुछ इनमें से कुछ पॉइंट्स पकड़ लेते हैं जो कि हम कहते हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और हम यहाँ से ये जो नियर बाय पॉइंट्स हैं, और हमें कहते हैं क्या हम इससे इधर पहुँच सकते हैं. अगर हम इससे इधर पहुँच सकते हैं तो हमें करेंगे इनके दरमियान में एक कनेक्शन बना. एंड हाउ वी गोइंग टू प्रेजेंट दैट. तो देखिए जे का अंदर जे से क्या मैं आई तक पहुँच सकता हूँ. अगर पहुँचते हैं तो मैं इनके दरमियान में एक ये लाइन बना. And he said that this line is an edge. And these points जो कि regions को represent कर रहे हैं, इसको जब shrink करके ये जो गोला बनाया है, इसको उसने नाम दिया vertex. Okay? And this representation is actually called graph. Okay? Everybody understand? And that was the inspiration. कि हमारे पास हम सारी लाइनें लगाना, हम सारे पॉइंट्स क्यों सेव करें. सो वो सारे कनेक्टेड पॉइंट्स जो कि जिनके ऊपर मुझे सॉल्यूशन एक ही देना है. सो व्हाई नॉट आई कनेक्ट देम सो दैट दे बिकम वन आइडेंटिटी. ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है. सो दिस वाज द नोटेशन. हां, वो व्हाट इज द प्रॉब्लम सेम रहता है. हाँ, वो पॉइंट्स, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर प्रॉब्लम हमारा तकरीबन सेम करता है, और उस पर एक का सोल्यूशन दूसरे का सोल्यूशन होगा. बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, ये जो नोटेशन है इसको हम ग्राफ नोटेशन कहते हैं. ठीक है. ये 1860s में डेवलप हुई थी. ठीक है. और उसके बाद उसने इसके ऊपर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किए. एक्चुअली मैथमेटिक्स की पूरी एक ब्रांच बना दी इसका कहते हैं ग्राफ्स थे, और वो ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है. ठीक है. उस वक्त तक कंप्यूटर नहीं थे. उस वक्त तक क्योंकि ड्राइंग वाज कंसिडर्ड एज, ज्योमेट्री वाज कंसिडर्ड एज ए वेरी मैथमेटिकल मॉडल. ठीक है. यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रूफ्स एंड इवन आइडियाज. ओके. सवाल ये है कि अब हम कंप्यूटर साइंस में लगे रह रहे हैं इस मॉडल को जो कि ग्राफ है, और मैं कहा हाँ जी इस रोबोट ने बैकएंड पे ये थोड़ी ना नहीं, रोबोट ने तो बैकएंड पे इन्फॉर्मेशन सेव करी. तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपको कहा जाए कि ये रोबोट का बैकएंड पे सारी इन्फॉर्मेशन सेव करो, हाउ कैन यू सेव दिस इन्फॉर्मेशन? हाउ कैन यू सेव दिस इन सम सॉर्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? How can you store it in some form of data structure? What do I mean by data structure? ये data structure क्या होते हैं? For example, आपने variables बनाने हैं, variables में store कर सकते हैं. आप चाहें तो इसको एक हमने data structure में क्या लगा दिया भाई, हमने सोचा था variables लिखे थे, फिर हमने arrays वगैरह बनाई थी, फिर हम linked list पे गए थे, फिर हम trees वगैरह पे गए, hash table बनाए, graph tree वगैरह गए. So the question is, how we can store this information in some sort of help from the data structure. Linked list. फिर क्या linked list? कैसे linked list store करेंगे? इंग्लिश से सिंपल है. नहीं जब क्यों हाँ क्या कैसे करोगे? सारे इसके वर्टेक्स को पर linked list में ये होता है ना, आमतौर पर linked list क्या होती है? अली थोड़ा कंसंट्रेशन करो. लिंक लिस्ट आमतौर पर ये होती है कि मेरे पास नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन याद आएगा, आज प्रीवियस की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. हाँ, लिंक लिस्ट यहाँ पे काम नहीं करेगी. हो सकता है लिंक लिस्ट का मॉडिफाई किया जाए उसके नेक्स्ट मल्टीपल. तो लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं आमतौर पे लिंक लिस्ट कहते हैं जी ये इससे ये इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, इसका प्रीवियस एलिमेंट है, बस ये दो इन्फॉर्मेशन होती है ना. आम लिंक लिस्ट जो हमने बनाई थी उसमें इन्फॉर्मेशन ये होती थी कि ये इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, ये इसका प्रीवियस एलिमेंट है. दैट्स इट. दो पॉइंट और दो पॉइंट का up and down. So जी left right up and down, लेकिन there are infinitely possible directions. ये देखिए इधर आप देखें तो ये देखें कि A से आप C पर जा सकते हैं, A से B पे जा सकते हैं, A से D पे जाते हैं, ये तीन डायरेक्शन है, राइट. हो सकता है मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि ये G पे डायरेक्शन है,
कोई रास्ता हो जिसमें वो डायरेक्टली ए से जी पे जा सकता हो और फिर लेट से ए से कोई जे में भी जा सकता हो। लेकिन इसको अब सवाल ये है कि ये हम कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करें। अब तुम्हारा नाम क्या सर? हमजा ने जो आइडिया दिया कि हम ऐसे करते हैं, पहले लेफ्ट आई मीन फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपका पॉइंटर था। अब सवाल ये है कि हम उसे और कैसे स्टोर कर सकते हैं। हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं कैसे स्टोर करूँ, दैट्स द क्वेश्चन। लेकिन हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे तक की जो स्टोर कर रहे थे, इतना अब ए पे खड़े होकर हमें जी की तो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। ए पे खड़े होके हमारे पास जी की नहीं लेकिन मैं कहता हूँ लेट्स से कि अगर ए से जी पे डायरेक्टली कोई तरीका होता, फॉर एग्जांपल ये कहाँ पर है, ये और जी कहाँ पर है, बाहर निकल गया। राइट हाँ जी, लेट्स से कि कोई ए से यहाँ पर जाने का एक वैसे डायरेक्टली रास्ता होता है, ठीक है, या कोई यहाँ से कोई डायरेक्टली रास्ता होता है। से हम लोग बस ये तो रख सकते हैं ना कि हम डी से कहाँ जा सकते हैं, ये हर नोड का ये रख सकते हैं कौन-कौन सी तो हम कह रही है कि हम why not we just save this information कि इस जगह से हम कहाँ जा सकते हैं, that's it, और डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, और वो डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं ये हम किसके में स्टोर करें, नेक्स्ट की है हम लोग हाँ? कर सकते हैं वो जो डेटा है हमें डेटा बना लेते हैं। So graph नहीं हम पहले so look how I will going to design it. So what she is saying is कि हम ऐसे करते हैं कि एक नोड बनाते हैं, इस तरह हमने पहले नोड बनाया था। So what I will going to do is I will going to make a node, ठीक है, and how I will going to shoot it, मैं ना हर नोड के पास ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। अब ये जो कहाँ जाना सेव करना है, that I can store in the form of a vectors or vector. Okay? So why not I store it in the form of a linked list? So मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक नोड है, for example मेरे पास A वाला नोड है। So A वाले नोड के यहाँ पर मैं एक लिंक लिस्ट रखूँगा, और वो लिंक लिस्ट होगी। अब A से मैं कहाँ जा सकता हूँ, right? A से मैं B पे जा सकता हूँ, A से मैं C पे जा सकता हूँ, A में मैं D पे जा सकता हूँ। So what I will going to do is यहाँ पर एक लिंक लिस्ट पड़ी होगी और वो लिंक लिस्ट कुछ इस तरह की होगी। हाँ जी, A से वो कहाँ जा सकता है, B पे भी जा सकता है, C पे भी जा सकता है, और कहाँ जा सकता है, D पे जा सकता है। ये बात समझ? Similarly वो अगर मैं B का बनाना चाहूँ तो B का क्या होगा, मैं B को बना लेता हूँ। B से क्या होगा, B से A पे जा सकता है और अच्छा मैं F को पहले रखें, E को पहले रखें। अच्छा ये यूजुअली होता ये है कि आपको कहा कुछ लोग ये करते हैं इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, कुछ लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लिखते, दोनों के अपने फायदे भी हैं नुकसान। So हम इसको फॉर एग्जांपल अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखते हैं, लेकिन हम सवाल अभी थोड़ी देर बात करेंगे कि अगर अल्फाबेटिक ना हो तो उससे क्या होगा, ठीक है, ऑलराइट, बस यही है, मतलब वही, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये है कि ये तो हर एक यूनियन से कनेक्टेड है, ये हमारे पास हो गया, मुझे बताएं कि ये क्या हो। अगर हम इसको भी नोड ही बनाए, ए नोड है, ए के डाउन में बी है, बी के डाउन में सी है, और बी के नेक्स्ट में ये पड़ा हुआ, इस तरह करके So here is the idea. The idea is, look at this. So what is node? Node has its ID. So let me call this int ID. So यहाँ मैंने ABC लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है ये actually 0 होता है, ये 1 होता है, और इस तरह से ये 0 1 2 3 होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अब ये यहाँ पर जो है एक्चुअली ये B वाला नोड नहीं होता, ये एक्चुअली एक पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट कर रहा होता है इसको, ये बात नहीं, और ये C नहीं होगा, ये एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा। So actually these are what? These are actually pointers. ये सब तो समझ में आ गई बात? So actually what we store here is we store in the form of list of node
pointers, and we call them neighbors. We call them what? Neighbors. ठीक है? Ends are neighbors. ये बात समझ आई? ठीक है? So these are neighbors. और आप चाहें तो आप दबा दबा लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर उसका साइज होता है, आप चेक कर सकते हैं साइज क्या है. ऑलराइट. और भी इंफॉर्मेशन आप रखना चाह सकते हैं, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं बाद में लेके आऊंगा. ठीक है? ऑलराइट. एंड व्हाट इज ए ग्राफ? सो लेट्स से मैं कहता हूँ क्लास ग्राफ बना दो, आपको क्लास के बारे में पता है, राइट? ओके. सो हाउ आई एम गोइंग टू मेक ए क्लास? दिस इज द ग्राफ. हेलो. तो ये मैंने क्लास बनाई है नोड की, और मैं अब ग्राफ की क्लास बना रहा हूँ. अब ग्राफ क्या होगा? What will be the data structure for graph? Graph will be, it should Vector of this. node. Huh? Vector of node. शाबाश. Vector of, आप चाहें तो नोड बना लें, आप चाहें तो नोड पॉइंटर बना लें. ठीक है? I will prefer node pointers. ठीक है? और इसका नाम होगा क्या? Let me call them these. ठीक है? Alright. तो अगर मुझे चाहिए कि इस वेक्टर का टोटल साइज कितना है तो हो जाएगा. इस ग्राफ के टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कैसे कैसे तो अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, ग्राफ G, और उसको मैंने कुछ भी इनिशियलाइज करवाया बाय कंस्ट्रक्टर, अगर मुझे उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड चाहिए कितने हैं तो मैं कैसे फिगर आउट करूंगा? G डॉट these डॉट साइज. ये मैं प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट से कह रहा हूं. सर वेक्टर की जगह लिंक लिस्ट भी यूज करता है. आप चाहे तो कर सकते हैं, बट व्हाई आई शुड चूज लिंक लिस्ट when I can directly go to that index by this. अगर मुझे फलाने इंडेक्स पे जाना है कैसे जाऊँगा? अगर मैं लिंक लिस्ट करूँगा तो मुझे वो एक n की कॉस्ट पड़ेगी. इसमें मुझे n की कॉस्ट नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली लिंक लिस्ट लगाऊंगा. तो जो आपने ऊपर रिलेशनशिप के लिंक लिस्ट में इसको वेक्टर कर लेते हैं. इसको नहीं, इसको बेटर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसमें ये जो पड़ा हुआ है B, ये B, C और D पड़ा हुआ है. अब मैं इसमें जाऊँ मुझे क्या पता? इसमें हो सकता है पड़ा Q R S. अब यहाँ पे QRS में पड़ा होता है. अब मैं मैंने ढूंढना है कि इसमें R किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो मुझे ट्रैवर्स ही करना है. ट्रैवर्सिंग इज ऑलवेज प्रेफर्ड बाय लिंक्स. अगर आपको पूरी ट्रैवर्सल करनी पड़े तो फिर आपके पास आपको लिंक लिस्ट ही यूज करनी चाहिए. किससे? ठीक है. आप दूसरा मेरा ख्याल में लिंक लिस्ट ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नई एज ऐड करनी पड़ेगी ना तो आपको ये ग्रो करवाना पड़ेगा, और ग्रो करवाने के लिए आपको अरे को दोबारा से रीअलोकेट करना पड़ेगा. सो आई वुड प्रेफर लिंक लिस्ट. ठीक है? इन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसमें अब ये ए जो है B C D से डैश था. अब मैं कहता हूं B से ऐसा करो, B से ना F पे भी एक एल डाल दो. अब क्या करेंगे? मैं यहां जाऊंगा, यहां जाके एक F. अब अगर लिंक लिस्ट होगी तो डायरेक्टली हट जाएगी, और लिंक लिस्ट नहीं होगी तो फिर मुझे अरे को रीग्रो करना पड़ेगा एंड सो. तो मैं पढ़ सकता हूं. हाँ, ये सब कुछ समझ में आई बात? ठीक है. सो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि ये एक क्या होना चाहिए, एक लिंक लिस्ट. बात समझ? सो अगर मैंने एक नई एज ऐड करनी है एक ग्राफ, फॉर एग्जांपल UV एज ऐड करनी है. UV का मतलब है यूथ. U रो में जाओ और उसमें V की एक एज डालो, या मुझे चेक करना है कि ये एज एग्जिस्ट करती ही नहीं करती. कैसे फिगर आउट करें? वेक्टर का पर ट्रैवर्स करेंगे. किसका ट्रैवर्स वेक्टर करेंगे? मतलब वेक्टर पहले हम U वाले इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे? बीच है. उसके पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे क्या उसमें कोई वर्टेक्स V वाला है. अगर वो V वाला में मिल जाता है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर एज मौजूद है, वरना वो एज मौजूद नहीं है. What's the time complexity of just checking कि U भी एज एग्जिस्ट करती है? एंड स्क्वायर. हाँ, U पे हम डायरेक्टली जा सकते हैं. V को ढूंढने की कॉस्ट है, U कितनी हो सकती है? वो एक्चुअली होगी नेबरहुड ऑफ U. जितनी U की नेबरहुड है उतनी दफा हमें मूव करना पड़ सकता है एट द वर्स्ट केस. और वो कितनी हो सकती है वैसे? n. एक्चुअली n -1. n -1 क्यों? हाँ, क्योंकि वो खुद है, अपने आप में थोड़ी को टच है. n plus n. So n plus n नहीं, 1 plus n. 1 क्यों? वो डायरेक्टली उस इंडेक्स पे गया वेक्टर है. नहीं पता. ये भी पता है. मैं कहता हूँ 5 के 10 में जाके देखो कि वो क्या अटैच है.
ठीक है, तो मैं 5 में जाऊंगा, 5 के अंदर देखूंगा 10 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बस में everybody understand? So what's the time complexity of just checking कि वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, है ना? अच्छा, अब अगर नई एज ऐड करनी है तो कैसे ऐड करूँगा? एज ऐड करनी कैसे करूँगा? इसी तरह जिसके ऊपर ऐड करनी है, जिसके अंदर ऐड करनी है मैं उस इंडेक्स पे जाऊंगा, उसमें पहले देखूंगा कि वी है तो नहीं, अगर वी है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और अगर वी नहीं है तो मैं पहले उसकी लोकेशन ढूंढूंगा जो मैं सॉर्टेड ऑर्डर में रहता हूँ, और फिर मुझे जाके वहाँ पे वैल्यू दिखानी है। What's the cost of it? नहीं, no, don't say n, say degree of या neighborhood का size of that u, ये बात सुनाई? जितना अगर उसका साइज 5 है तो मुझे 5 कॉस्ट पड़ेगी, n क्यों करेगा? बस में, so the precise answer is the degree of u, okay, the degree of u, डिग्री क्या होती है इसमें, मैं ये ग्राफ की टोपोलॉजी होती है कि एक वर्टेक्स के कितने नेबर्स हैं वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है? नंदी उठो, थोड़ा सा हाँ, ये सब कुछ समझ में आ गई बात, ठीक है? Can you come up with a better list? यदि हमें कोई नई एज ऐड करनी है तो मुझे n वर्स्ट केस में n कॉस्ट पड़ती है, n क्यों? n नहीं एक्चुअली क्या चाहिए, जितने वर्टिसेस हैं उतने कॉस्ट पड़ सकती है, क्यों? हैश टेबल फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है? हैश टेबल के अलावा हम बात ये कैसे सब सारे नोड्स में, हाँ क्या? एक वर्टेक्स आप वर्टेक्स के निकल, क्योंकि एक वर्टेक्स मैक्सिमम सब के साथ अटैच हो सकता है, इसका मतलब है कि उसको उस तक पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करके आखिर में जाके राइट करना, सो ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कैन वी, और इवन अगर हमें चेक करना हो कि ये इसका नेबर है या नहीं, इवन ये कॉस्ट भी हमें बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसकी उस लिंक उसमें उस वेक्टर की उस एंट्री में जाके हम उसकी पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, दैट इज अगेन ऑफ वी, है ना? सो वर्स्ट केस ऑफ वी, है ना? कैन वी डू बेटर देन दिस? Can we do better than this? That's the question. Even better. सर अब हर एक नोड के आगे ना एक ट्री रख दें, ट्री रख दें, वो वही कह रहा है। वो कहता है कि what if कि हम इसके आगे एक बैलेंस ट्री रख दें, मैप रख दें, ठीक है? लेकिन कितनी कॉस्ट पड़ेगी? लॉगिन कि ये इसकी एज है या नहीं, हमें लॉगिन पड़ेगी, इवन रिसर्च की कॉस्ट भी हमारी कितनी पड़ेगी, लॉगिन पड़ेगी, ठीक है? जो बुरहान ने आइडिया दिया है वो कहता है कि मैं इसके आगे हैश टेबल रखता हूँ, और हैश टेबल में इशू है कि हैश टेबल में बहुत बड़ा होता है, तो एक्चुअली यू आर परहैप्स मोस्टली वन ऑफ दिस, आप अगर कोलिजन फ्री हैश टेबल बनाना हो ना आपने, तो आपको वन में वो बना सकता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन थिंग। वैसे भी अब नेचुरली हम कोई एग्जांपल देंगे तो बेस सॉल्विंग है, अगर डाटा और उससे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खैर अभी हम हैश टेबल में बात नहीं करते, तो बाद में बात करेंगे, वो हमारे सर्वर में कॉल आएगा वो उससे रिलेटेड, ठीक है? सर लेकिन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि जो इन्होंने बात की है कि हम इसके हर एक के आगे एक्चुअली लिंक लिस्ट रखते हैं, हम एक्चुअली एक ट्री रखते हैं, बैलेंस ट्री रखते हैं, ठीक है? तो वो log v हो जाएगा, सो दैट इज मच बेटर, बट कैन वी डू बेटर देन दिस? सर वन में करना चाहिए, ओ वन में, ओ वन में सेट नहीं वही होता, सेट भी बैकएंड पे रेड फ्लैग की, लुक एट दिस, look at the left image, look at the left image, can you see a connection? What's the connection? जो उसके लिंक को है उसके साथ उसके बाद किया, वो जिस के साथ अटैच है वहां पर हम वन कर देते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में, और हम जो अटैच नहीं है उससे वापस जीरो रखते हैं, ठीक है? अब अगर हमने नई एज ऐड करनी है, all we will have to do is go to that index, make it one, जी,
अगर हमने एज रिमूव करनी है वहाँ जाके जीरो कर देंगे, कॉस्ट कितनी बड़ी और 1. ओके, बट this advantage came with a cost, and that cost is space. We have made a 2-dimensional array of n square size. So there are number of vertices are n. Usually they are called v. Then the cost of the making this matrix is v square. ये बात सुना? Everybody understand? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैंने n क्यों नहीं यूज किया, मैं यहाँ बता रहा हूँ. There are actually 2 ways to represent a graph. One is this, जो मैंने अभी बताया. इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ये कितनी एंट्रीज होगी? n नहीं, इसे कहते हैं v number of vertices है. और what is e? What is e? E is actually the summation of neighborhood of, ये जो n's रखे हैं ना हमने, ठीक है, इनका काउंट, ठीक है. So इन n's की का काउंट अगर सेव कर लें तो ये बनता है, ये बात है actually. So what is e? E is the set of all n. So what in this data structure what we are storing is we are storing v plus e space. So the total space complexity. So what is we say space complexity of just storing a graph is O of v plus e. Okay, and we say this is called n. Okay, in our graph notation this is the n. ठीक है. So what is, हम जब कहते हैं ना कि हमारे पास एक adjacency list दी हुई है, so हमारे problem size इसके बराबर होता है problem size हमारा ये, ठीक है. So what is n? n is O of v plus e. बस नहीं. So what is the input size of our program? This is the input size. क्योंकि edges में तो performance करनी होती है, तो edges को भी store तो किया हुआ है ना उसने, ठीक है. So what is n? n is actually not only v plus e is all these edges as well, ठीक है. So हम आम तौर पे जितने भी ग्राफ्स एल्गोरिथम करेंगे वो सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसके वजह से. तो v plus e की फॉर्म में बताना पड़ेगा कि वो कितना है. उसका वर्टिस सारे अलग-अलग पड़े हो तो खाली v आ जाएगा, सारे मिले और सारे मिले हो तो ये फिर एक्चुअली v स्क्वायर हो जाएगा. ये v स्क्वायर हो जाएगा. ये बात समझ में आई नहीं? नहीं. अगर पहला वर्टेक्स भी तमाम के साथ कनेक्टेड है तो n-1 एजेस वहां गई, दूसरा भी तमाम कनेक्टेड है n-1 एजेस v-1 n-1 वर्टेक्स दोबारा आ गया. तो v वर्टिसेस हैं और हर एक की v-1 एजेस है, तो v into v-1 is almost v square. ठीक है, ये बात समझ आई? ये है अगर हमारे पास ये डेटा स्ट्रक्चर है ना. मुझे बताएं अगर हमारे हमने ये स्टोर किया इसमें हमारा n किस बराबर होगा. ये है अगर हमारी adjacency list. When we store graph as a adjacency list, when we store graph as a adjacency matrix, then my n is actually equal to what? V into that is v square. Everybody understand? कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं आपसे, देखते हैं कि आपको पता लगता है कि नहीं कि दोनों का एडवांटेज क्या है और दोनों का डिसएडवांटेज क्या है. ठीक है, प्लीज फिर लेट फॉर मी कि अगर मैं आपको कहूं so time to test if uv belongs to e or not. What is uv? uv means u से v पे मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता. अगर मेरे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो या शाबाश ये रहेगा O of 1. What about this? मुझे u v चेक करना है. हाँ नहीं बताएं. फर्स्ट केस में मैं O of v तक जा सकता हूं, बट टेल मी
वो भी मैंने नहीं, सर बी पे जाके वी पे जाके मुझे यू ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, है ना? सॉरी, यू पे जाके वी पे ट्रैवर्सल, दोनों नहीं हो सकता, सर दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इट्स ए टू वे कनेक्शन, है ना? क्योंकि अगर मैं अगर यू से वी पे जा रही है तो वी से यू पे भी जा रही होगी, है ना? सो एक्चुअली हम ये करते हैं, मिन ऑफ डिग्री ऑफ यू, डिग्री ऑफ जो इन दोनों में से छोटा होगा अब उसमें ट्रैवर्सल, ये बात सुना? एवरीबॉडी तो हाँ? प्लस ई प्लस यू टोटल नंबर उस जिस जगह पे जाते हैं हम उसके जो आप कह रहे हैं डिग्री क्या है? डिग्री है कि मुझे उसकी पूरी ट्रैवर्सल करनी पड़ती है। तो यू या वी पे जाने की कॉस्ट कितनी है? चलो जी, 1 करते हैं, +1, सो कैसे आपके पास वो तो एक वेक्टर है ना, हाँ, तो वेक्टर में मैं डायरेक्टली उस पे जाऊंगा, आपको कैसे पता कि वो यू कहाँ पर, आप हर किसी से कंपेयर करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ता ना, मैं ये कह रहा हूँ ये यू वी जो होते हैं वो एक्चुअली एक इंटीजर होते हैं, यदि मैं कहूँगा ये मुझे बताओ 1 से 10 पे मैं जा सकता हूँ, ये सवाल। अच्छा, So 1 is an index, 10 is an index, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट। वो हमारे यहाँ पे यू भी लिखे हुए हैं समझाने के लिए जेनेरिक, वो कोई भी इंडेक्स होंगे जिस पे मैं डायरेक्टली जाया करूँगा। ओ वी के साथ क्या? ओ वी, ये ओ वी इसलिए है क्योंकि एक वर्ड दोनों वर्ड्स जो है उनकी डिग्री एन हो, डिग्री वी के बराबर, यानी दोनों वर्ड्स तकरीबन तमाम से अटैच्ड है, अभी तो मुझे पूरा पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है? आगे जा रहे हैं, ये ग्राफ है, जब हम यू डायरेक्शन की कहते हैं ना, तो डायरेक्शन का मतलब है कि अब हमारा ग्राफ जो है वो डायरेक्शनल ग्राफ है। डायरेक्शनल ग्राफ का मतलब होता है कि अगर यू से वी पर एज है तो लाजमी नहीं है कि वी से वी जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्राफ, सो लुक एट दिस प्लीज, कई ऐसे ग्राफ होते हैं जो डायरेक्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फेसबुक की बात की जाए, अब फेसबुक में जो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है, इट्स ए टू वे रिलेशनशिप। ये बात सुना है? क्यों? क्योंकि हम जब फ्रेंड हैं तो मेरी पोस्ट जो है, अब हम आई कैन सी हिज प्रोफाइल, ही कैन सी माय प्रोफाइल, ठीक है? ये बात सुना है? बट क्या ट्विटर ऐसा है? नहीं फॉलो कर ट्विटर में फॉलो रिलेशनशिप है, अब उसमें लाजमी नहीं है कि अगर मैं किसी को फॉलो करता हूँ तो वो मुझे फॉलो करे, या अगर वो मुझे फॉलो करता तो मैं उसे फॉलो करूँ। ये बात सुना है? Everybody understand? So the thing is there, अगर यू वी को फॉलो करता है तो यू की लिस्ट में वी होगा, लेकिन अगर वी यू को फॉलो नहीं करता तो वी जो है उसकी लिस्ट में आपको यू नजर नहीं आएगा। ये बात समझ में? So अब ये सवाल है कि अगर आपने ये टेस्ट करना हो कि क्या यू वी एज है ई में, यहाँ पे क्या हो, ये तो वो 1, इधर क्या हो, डिग्री ऑफ यू, ये अगेन डिग्री ऑफ यू के बारे में, ठीक है? जो मैक्सिमम हमें पता है ऑफ वी हो सकती है, ठीक है? हाँ जी, अब आए अब आपको लगेगा पता, अभी आप तो कहते हैं ना ये भी हर चीज में अच्छी है, देखते हैं क्या होता है। टाइम टू लिस्ट द नेबरहुड ऑफ बी स्क्वायर, इधर आ नहीं इसी का मैसेज कितनी है? मुझे बताना है बी के नेबर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। सर तो हर वी पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा बताएं मुझे। मैं पहले वेक्टर के एंट्री पे जाऊंगा और मैं तमाम मुझे वो अरे एक्स जो है वो ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, जहां जहां 1 आ रहा है वो मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा। दिस विल कॉस्ट अस डिग्री व्हाट अबाउट दिस? दिस इज डिग्री ऑफ। आप मेरी बात सुने, मैंने क्या बात की है? इमेजिन करें कि आप फेसबुक के यूजर हैं, लेट्स से फेसबुक के जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि साइट डेवलपमेंट करता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बैक एंड पे ये स्टोर करेंगे या ये स्टोर करेंगे? लुक एट द सिनेरियो, प्लीज लुक एट द सिनेरियो। अब लेट्स से जी आपका एक आम यूजर ऑन एवरेज देखें ना तो उसके 200-300 फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है? अब फेसबुक के टोटल कितने यूजर्स हैं? तकरीबन 1.5 बिलियन। अब अगर मैं एक पोस्ट करता हूँ,
ठीक है, अगर फेसबुक ने ये एल्गो बनाया हुआ है बैकएंड पे, तो मैं अगर फेसबुक की अपनी वॉल पे कोई पोस्ट करता हूँ तो वो मेरे दोस्तों के वॉल पे पोस्ट होती है, ऐसे ही। अच्छा, अब अगर फेसबुक ने ये डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है तो उसको O of V टाइम मिलेगा, यानी 1 बिलियन रिकॉर्ड जाके वॉल्स पे जाके देखना पड़ेगा क्या क्या ये उसके दोस्त हैं, अगर हैं तो उनकी वॉल में जाके ये ऐड। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंटेशन so it only has to traverse those 500 friends directly और उस पे जाके ये पोस्ट करेंगे। मुझे बताएं, if you are the developer, will you go for this or you will go for this? We will go for this. ये बात सुनाई? So ठीक है, मुझे एक UV की ट्रैवर्सल करने के लिए ये और ये दोस्त हैं या नहीं, वो मुझे कॉस्टली ऑपरेशन पड़ता है, लेकिन ये भाई बहुत बड़ा खतरनाक काम है। ठीक है, कहाँ मुझे 300 की कॉस्ट पड़ रही है, कहाँ मुझे 1 बिलियन की कॉस्ट पड़ रही है। So I will always prefer this. ये बात सुनाई? Actually इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। We know कि अगर उसके आगे हम मैप रख दें तो वो बैलेंस 3 रख दे तो वो लॉग इन में हो जाएगा, जो कि शायद और भी इजी होगा। ये सबको समझ में आएगा? लॉग ऑफ डिग्री होगी। That is far better. Everybody understand? Everybody understand? Okay? So far so good. So this is the advantage. Okay, and you can. I just wanted to show you कि कई जगहों पे आपको बड़ा सोच समझ के। तो मेरा सवाल अब जेनेरिक है, मुझे बताएं कि will you always prefer this or you always prefer this? ये जी डिपेंड करता है। इसका आंसर है जी सब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। कई चीजें आप ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट के एतबार से इधर उधर होती है। ये बिल्कुल वही बात है, ये बात समझ? सर इन दोनों को मिला बहुत कुछ कर सकते हैं जी आप बस। सो आई थिंक ये बाकी जो मैं टेबल फिल नहीं कर रहा है आप आपको देखना है। अच्छा, अब मैं ना वापस चलता हूँ इसी सवाल। सवाल ये कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, प्रॉब्लम वही का वही था क्या कि हम ये चाहते हैं कि क्या मैं इससे इस जगह पहुंच सकता हूँ या नहीं, इस जगह से इस जगह पहुंच सकता हूँ। That is something I want to solve. Okay? And you are given a map और आपको कहा गया जितनी मर्जी प्री प्रोसेसिंग करनी कर लो, और प्री प्रोसेसिंग करने के बाद कोशिश करो कि बड़ा ही एफिशिएंटली बताना है आपने कि क्या आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये सब कुछ समझ में आ गई बात? Everybody understand? अच्छा, मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ। अब तरीका ये है कि ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब इस ग्राफ में आपको ये कोई सिनेरियो नजर आ रहा है, लाजमी नहीं है कि इस तरह का सिनेरियो, इट कुड बी ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अच्छा, should I erase this? I mean, do you agree? ये आपको समझ में आ गया था? ठीक है, तो can I erase this? So let me erase this. अच्छा, मैं ना आपको एक बड़ा मजेदार सा प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बहुत ही रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम है और इसका ऐसे ताल्लुक है, ठीक है। सो इमेजिन करें कि आपको ना पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन बराबर कहाँ है, उसके ना मैं आपको ना सैटेलाइट इमेजेस दूँ, ठीक है, और सैटेलाइट इमेजेस में देता हूँ कि भाई उसकी बहुत सारे हर वो ना आपको ना तस्वीरें मिलेंगी, और तस्वीरें इस तरह से मिलेंगी कि इस जगह कलर मिली है, जगह कलर किया है, ठीक है, जमीन कलर, ठीक है। आपने फिगर आउट करना है कि कितने आइलैंड्स हैं इस पर, यानी कहाँ कहाँ पर आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये सवाल, ठीक है। अच्छा, या मैं कहता हूँ एक्चुअली इट्स द सेम प्रॉब्लम एज दिस, कि मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक पूरा ये मैप दिया हुआ है, इसमें मैंने फिगर आउट करना है कि जे से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तुम्हारा कि जे से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। और इमेजिन करें ये ना मैं कर सकता हूँ मैप चेंज कर रहा हूँ इस जगह पे ना, ये फिल तो एक पोर्शन बन जाएगा, ये इमेजिन करें ये फिल है, तो एक पोर्शन ये बन जाएगा,
एक पोर्शन ये बन जाएगा और एक पोर्शन ये बन जाएगा, ठीक है। सो फार सो गुड। अब सवाल ये है कि भाई अब मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, लेट्स से कि कितने इस पूरे के पूरे ग्राफ में, इस पूरे ग्राफ में कितने पॉसिबल कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मतलब क्या है, ये पोर्शन जिसमें हर एक जगह इन जगहों पे पहुंच सकता है। ये एक पोर्शन है जिनमें हम कहाँ जा सकते हैं। ये एक पोर्शन है जिसमें हम आपस में एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है यार। ये अच्छा सही बात तो समझ नहीं मैं इस बात असल में इशू ये है कि व्हाट डू आई वांट टू सॉल्व कि एक जगह से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। मैं जहाँ जा सकता हूँ और फोर्स वहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ, अग्री, ठीक, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल चीज़ है। तो मैं कहता हूँ यहाँ से मैं जहाँ जा सकता हूँ ये मेरा एक ही कंपोनेंट है। ये बात सुनाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जे से मैं कहाँ जा सकता हूँ, एटलीस्ट पोर्शन है ना, लेट्स से ये क्लोज, तो मैं इससे आगे जाना जा सकता हूँ। अच्छा जी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, जी से एच पे जा सकता हूँ, और एच से कहाँ जाता हूँ, जी पे जा सकता हूँ। एल से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, एल से सिर्फ के पे आ सकता हूँ और फिर आगे नहीं जा सकता। सो एक्चुअली इस पूरे ग्राफ में कितने कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं। बात सुना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो व्हाट डू आई वांट टू सर्च, आई वांट टू सर्च इस ग्राफ के कितने कंपोनेंट्स हैं, इस ग्राफ पे कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। ये सब कुछ समझ में आ गई बात। अच्छा और मैं एक और काम करूँगा, तो ये कि what I will going to do is I will going to assign every vertex, every node a connected component number। और होगा ये फॉर एग्जाम्पल कि ये L और K इन दोनों को मैं असाइन करूँगा